Hello guys, welcome back once again in this channel. This is sum number 2 we have taken from resolution chapter. Students, this is the question, and see here in this question we have to pass necessary entries in the books of Janki store. That means in this sum we have to post journal entries. They have not asked ledger entries, but students, here I have prepared columns for ledger entries, because on the basis of ledger entries we are going to pass journal entries. It will be little bit lengthy, but you would understand the journal entries. So students, I hope that you will watch this video till end. So we'll start this question. Leela, Manda and Kunda are partners in the firm Janki Stores, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1, respectively, on 31st March 2000, and their balance sheet was as under. तो this is the balance sheet. इसमें से liabilities को transfer करना है कहाँ पर? I'll write here for your information. You have to transfer the liabilities on the credit side of realization account, and here's item we have to transfer to the debit side of realization account. This capital account will be going to capital account, and for this bank account will be opening separate account. Rest all items will go to realization account. This is the adjustment. Every adjustment should have minimum 2 effects. We have already prepared ledger entries. Columns are ready. I'll write here bank account, right? Because here in balance sheet we are having bank account, so we'll be writing bank account everywhere. So I'll start. See, बेसिकली ये सब में आपको दो चीज समझने वाले हैं. सबसे पहले तो आप ये समझने वाले हैं लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, और आप जर्नल एंट्रीज भी समझने वाले हैं. इसलिए इस वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा होने वाला है. तो आई होप यू विल बी कीपिंग पेशेंस while watching this video, and I would suggest one thing, students, while you watch this video, just use headphone for better understanding, for good result. So I'll start. Creditors and bills payable will go to which side? Credit side of dissolution account. So this is the credit side of dissolution account. Here I'll write buy sundry assets. Sundry assets में we are having creditors and bills payable, right? So we'll write amount. इसका sundry creditors का amount है 28,800 और इसका amount है 21,600. Total of these is 50,400 will go to outer column. Next we are having capital account, so we will be writing here by balance, right? Brought down. So लीला का कैपिटल है 2,27,160 और इसका है 1,44,000. Here in Kunda's case 1,08,000. Okay, it is done. You can see here in the question. See, this is the capital. Now see these many assets. These many assets will go to which side? Debit side of realization account, right? See, this is the debit side of realization account. I'll write here to sundry assets, and below that I'll write building, I'll write machinery,
I'll write motor car. I'll write after motor car I'll write goodwill, then investment, फिर उसके बाद debtors, फिर उसके बाद stocks, and amount I'll write here. बिल्डिंग का अमाउंट है 1,02,000 और इसका अमाउंट है 73,000, 1,67,600, 45,600, 62,400, then 30,600 और फिर नेक्स्ट अमाउंट है 45,000. ओके, ठीक है. तो कितने एसेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. विल चेक इट. 1 2 3 4 5 6 7, राइट. इनका टोटल कितना होता है? 2,56,000. हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी हमारा होता है 2,56,000. समथिंग इज प्रॉब्लम ओवर हियर. इसका भी टोटल 2,56,000 होना चाहिए. हाँ, मशीनरी का वैल्यू है 73,000. टू लाख 56,000. 5,26,200. वापस से यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग. यस, करेक्ट है. तो यहाँ पर हम लोग इसका टोटल कितना था? 5,26,200. दैट विल राइट हियर. ओके, देन अभी हमको क्या करना है? बैंक अकाउंट ओपन करना है. 3,360 बैलेंस ब्रॉट डाउन. This is bank account, this is debit side. I'll write here to balance brought down 3,360. Now balance sheet item is done. Okay. अब क्या करेंगे? अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे. सबसे पहले ये साइड का डेबिट साइड का एंट्रीज करेंगे. अब देखो इसमें ये आइटम कहाँ पर है? ये सब आइटम सन्ड्री एसेट्स है रियलाइजेशन के डेबिट में. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. और जब ये हम लोग लायबिलिटीज की एंट्री पास करेंगे तो डेबिट ये सब हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. देखो इधर क्रेडिट साइड है ना रियलाइजेशन अकाउंट के, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड दिस आइटम विल बी डेबिटेड. ये सन्ड्री लायबिलिटीज है यहाँ पे. So we'll take these items. Realization account debit to sundry assets account. Realization account debit 5,26,200 to sundry assets account. Sundry asset में we are having building, we are having machinery, we are having motor car, we are having goodwill, we are having investment, we are having debtors, we are having stock. Their amount
is 1,02,000, then 73,000, 1,67,600, then 45,000, 62,400, 30,600, 45,000. Right? Are we getting the same total? Yes. Something is mistake. Building is 1,02,000, machinery 73,000. 1,02,000, machinery 73,000. यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर चला गया था. ओके. मोटर कार 1,67,600. 1,67,600. गुडविल 45,600. 45,000. गुडविल है 45,600. ओके. इन्वेस्टमेंट 62,400. इन्वेस्टमेंट 62,400. डेटर्स 30,600. यहाँ पर भी है 30,600. 45,000. ओके, करेक्टेड. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीइंग सन्ड्री assets are transferred to realization account. सेकेंड एंट्री में sundry liabilities account will be debited. $50,400. 50,400 यहाँ पर आएगा to creditors and bills payable. क्रेडिटर्स का अमाउंट है 28,800. 28,800 और बिल्स पेबल का अमाउंट है 21,600. 21,600. Here I'll write, क्या लिखना है यहाँ पर, ये यहाँ पे नहीं आएगा. यहाँ पर हमको लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पर आएगा 50,400 और ये सब जो आइटम है ना, ये सब आइटम आपका आ जाएगा यहाँ पे. ओके, देन I'll write narration being liabilities are transferred. चलो, अब नंबर 3 की जर्नल एंट्री नहीं है, हमको लेजर में से उठाना पड़ेगा. ठीक है, इसका हो गया जर्नल एंट्री और इसका हो गया. बाकी ये तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती. विल गो टू दिस हियर लेजर एडजस्टमेंट. लीला अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग 1,23,600. तो देखो कैसे आएगा. लीला अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
टू रियलाइजेशन लिखने का, रियलाइजेशन अकाउंट 1,23,600, राइट। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग, ये डेबिट में है ना, तो सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट में देंगे बाय लीलास कैपिटल अकाउंट 1,23,600. we'll check amount 1,23,600. yes. अब देखो जनरल एंट्री में ये लीलाज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब भी आप जनरल एंट्री पास करेंगे ना, तो क्रेडिट नहीं डेबिट हो जाएगा। जब भी आप जनरल एंट्री पास करेंगे ना, ये सारे आइटम्स है ना डेबिट हो जाएंगे जनरल एंट्री पास करें तो। लीलाज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, $1,23,600 realization account 1,33,600 and here I'll write क्या लेकर गया है इसने, बी बिल्डिंग टेकन ओवर। नेक्स्ट, मांडा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मांडास का कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब टोटल कितना होता है यहाँ पे, बुक वैल्यू में इसने लेकर गया है। गुडविल स्टॉक डेटर है क्या, हम लोग वापस से एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या लेके गया है। गुडविल स्टॉक डेटर्स लेकर गया है, कौन से वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो देखो अमाउंट लिखता हूँ बाद में, ये डेबिट में है ना, तो इसका इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय मांडास कैपिटल अकाउंट। अभी मांडा ने क्या क्या लेकर गया है, हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे। डेटर्स लेकर गया है, डेटर्स, गुडविल लेकर गया है और स्टॉक भी लेकर गया है। हम लोग चेक कर लेते हैं। गुडविल स्टॉक डेटर्स, गुडविल ये आ गया स्टॉक। डेटर्स की अमाउंट कितनी है, यहाँ से हम लोग ले लेंगे डेटर्स 30,600, विल टेक हियर। गुडविल कितना है, तो गुडविल भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, राइट। और स्टॉक कितना है, ये हम लोग ने यहाँ पे ले लिया। अब इसका टोटल होता है 1,21,200, 1,200। इसका हम लोग सेकेंड इफेक्ट देंगे यहाँ पे, नहीं ऑलरेडी हमने लिखा है यहाँ पे, ये देखो ये, हाँ, तो यहाँ पे जाएगा 1,21,200। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। देखो हमको इसकी जनरल एंट्री पास करनी है, इतने आइटम्स की हम लोग सब एक साथ जनरल एंट्री पास करेंगे। चलो नहीं तो एक काम करते, पहले जनरल एंट्री पास करते हैं। इसकी हमने पास की जनरल एंट्री, लीलास कैपिटल अकाउंट, ये हो गया है। तो अभी हम लोग इसका जनरल एंट्री पास करते हैं, राइट। यहाँ पे देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट में है ना, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाए। कौन सा पार्टनर, मांडा, तो मांडाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,21,200 on debit to realization account
1,21,200। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे दिखा दो, शो कर दो नरेशन में एसेट्स आर टेकन ओवर, बस डिस्क्रिप्शन लिख के लिखेंगे आप, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर तो। नेक्स्ट इज एंड अग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो मांडा ने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का भी पेमेंट कर रही है, वो यहाँ पर आएगा ना। मांडा लायबिलिटी का पेमेंट करी ना, देखो हम लोग ने लायबिलिटी यहाँ पे डाला है, जब उसका पेमेंट होगा तो एंट्री ये साइड में आएगा, डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मांडा। क्यों मांडा का नाम लिखेंगे? क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है? मांडा पेमेंट कर रही है, इसलिए। उसने क्या क्या पेमेंट किया? बिल्स पेबल का पेमेंट किया, और किसका पेमेंट किया? क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है। बिल्स पेबल देखो यही अमाउंट है, हाँ? ये अमाउंट मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, कितना हो रहा है? 50,400। अब वो 50,400 मांडा का आप वापस से हेड लिख सकते टू रियलाइजेशन अकाउंट। सॉरी, ये डेबिट में नहीं जाएगा क्योंकि पेमेंट कर रहा है ना, यहाँ पर आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। मांडा का अकाउंट में जाएगा 50,400, राइट। देखो ये क्रेडिट साइड में क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर इसका ये डेबिट में है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग ने दिया। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट इफेक्ट डेबिट में है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाता है। We'll go back to the adjustment and we'll see the next adjustment. मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड हुआ है। ओके चलो, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज कैश इज रिसीव्ड। सो आई विल राइट हियर बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या आया है? मोटर कार 1,51,80, 1,51,80 रुपीज। और क्या आया है? मशीनरी 31,680, मशीनरी 31,680 का टोटल 1,82,760, 1,82,760। अब ये 1,82,760 इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, ये देखो ये क्रेडिट में ना, तो सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे जाएगा बैंक के डेबिट में। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, आउटर कॉलम में विल राइट हियर 1,82,760। यहाँ पे मैं लिखूंगा एसेट्स आर रियलाइज्ड, राइट। इसकी जनरल एंट्री बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैंने बोला था ये सारा अकाउंट डेबिट होता है जनरल एंट्री में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई विल राइट हियर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन लिख देते हैं, फिर बाद में अमाउंट भी लिखते हैं। बीइंग एसेट्स आर रियलाइज्ड, कितना अमाउंट है? 1,82,760, 1,82,760. Same amount will be recorded here too. Okay. Next adjustment.
इन्वेस्टमेंट्स वेर टेकन ओवर बाय कुंडा एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज 55,440। ठीक है, अब कुंडा ने इन्वेस्टमेंट लेकर गया है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,440, 55,480 आ गया। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा, तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय, कौन सा पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेकर गया है, कुंडा, तो कुंडास कैपिटल अकाउंट। कितना वैल्यू है, 55,440। यहाँ पे मैं वापस लिखूंगा, चलो इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, एसेट भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर। ठीक, अब ये जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। कुंडास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कुंडास कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,440 to realization यहाँ पे मैं लिखूंगा इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया है। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर। नेक्स्ट है, हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड रुपीज 6,880। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया है। और हम लोग जब भी आप इसकी एंट्री करेंगे आपको देखने हैं अदर लायबिलिटीज का भी पेमेंट किया है क्या। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया है मांडा ने। ये देखो मैंने यहाँ पर ये यहाँ पर है एंट्री, देखो मांडा ने ऑलरेडी बिल्स और क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया है। तो अब सिर्फ रियलाइजेशन का ही पेमेंट करनी है हमको, तो हम लोग उसका इफेक्ट यहाँ पे देंगे टू बैंक अकाउंट 6,800। आई विल चेक 6,800। यहाँ पे मैं लिखूंगा पेड फॉर रियलाइजेशन expenses. Second effect, since this is in debit side, then second effect will go to credit side by realization account. यहाँ पर आएगा 6,800। ठीक, everything is done. We'll check. Yes, everything is done. Now the time is, अच्छा इसका जनरल एंट्री पास करेंगे। अभी यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। $6,800 to बैंक अकाउंट 6,800। नरेशन है being paid for realization expenses। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। ये साइड का टोटल है 5,83,400, 5,83,400 and this side total is 5,33,400, 5,33,400। so this side is higher, 5,83,400, 400 माइनस करेंगे 5,83,400 माइनस 5,33,400,
तो हमको यहाँ पर बैलेंस मिलता है 50,000. 50,000 will be divided among partners Kunda, Manda, Leela by partners कैपिटल अकाउंट. तो अभी इसका रेशियो है 3:2:1. 3:2:1 है. तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे. 50,000 इंटू 3 अपॉन 6 आएगा, राइट. 25,000 आएगा. तो इसका कितना हमने लिए 3. तो इसका 2 रेशियो है. जैसे कैलकुलेट करेंगे 50,000 इंटू 2 अपॉन 6. और इसका 3:2:1 था. इसका आएगा 50,000 इंटू 1 अपॉन 6. We'll check whether this is correct. Yes, this is correct. अब इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग देंगे. ये क्रेडिट में है ना, तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पर 25,000 आएगा और इसका आएगा 16,667. यहाँ पे जाएगा 88,333. लास्ट का 0.3 हम लोग ये इग्नोर करेंगे. ये 0.3 इग्नोर करेंगे हम लोग. तो अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है. तो ये है ना, ये अपने को लॉस हुआ है. हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल एंट्री. ये सब डेबिट हो जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर्स $50,000. इसमें 50,000 हम लोग इसको एक काम करेंगे, डिवाइड करेंगे. यहाँ पे हम पार्टनर का नाम लिखेंगे लीला. लीला का कितना था 25,000 था. मांडा, मांडा का कितना था 16,667. 16,667 कहता 8,333. ये कौन है कुंडा. टोटल चेक करेंगे 50,000. ये 50,000 आता है. तो हम लोग 50,000 अभी यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में और पर्टिकुलर में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. नरेशन being loss on realization is transferred. Done. लेटेस्ट में वापस आएंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे. देखो विच साइड इज हायर. लीला का 1,48,600. तो ये साइड का हायर है 2,27,160. 2,27,160. तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे ओके. अब इसका बैलेंस निकालेंगे. यहाँ का कम है डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड में बैलेंस लिखेंगे 2,27,160
1,27,160 माइनस 1,23,600 और माइनस क्या आएगा 25,000 भी आएगा। ओके, तो इसका बैलेंस है 78,560 और मांडा का कौन सा हायर है, ये सेट का टोटल कितना है 1,37,867। दिस साइड इज हायर, कितना है 1,94,400, 1,94,400। We'll write this total here too. अब माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1,21,200 और क्या माइनस करेंगे 16,000, कॉमा नहीं रहना चाहिए, 1,21,600 माइनस 16,667 तो हमको मिला यहाँ पर 56,133। वन लाख 94,400 ये देखो ये कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 1,21,200 तो आता है 533। अभी इसका टोटल 63,000 समथिंग है, तो ये साइड का ज़्यादा है, इस साइड इज बिगर, दैट अमाउंट आई विल राइट ऑन बोथ द साइड। अब इसको हमको माइनस करना है, देखो 1,08,000 माइनस 55,440 माइनस 8,333। ओके, तो आता है 44,227। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट अल्टीमेटली हमको डालना है बैंक अकाउंट में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट जाएगा यहाँ पर क्रेडिट में, इसका भी जर्नल एंट्री पास करना है हमको बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लीला, मांडा और कुंडा, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, सेकेंड इफेक्ट हम लोग दे रहे हैं इसका। इसका टोटल आता है 1,79,320, 1,79,320। ओके, तो ये साइड का टोटल कितना है आपका 1,86,120, 1,86,120। डेबिट साइड का भी उतना ही आना चाहिए, यस 1,86,120। यहाँ का भी टोटल सेम आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ये एंटायर सम करेक्ट हो गया है। हम लोग इसका सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। अब देखो ये डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है ना, यही वाला है ना, ये चीज़ यही वाला है ना। तो यहाँ पर भी देखो रियलाइजेशन का क्रेडिट में है ये सब आइटम, तो ये सब आइटम्स डेबिट हो जाएंगे, राइट। तो एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका टोटल था 1 लाख। पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ पे नाम आएगा लीला, मांडा
कुंडा, इसका अमाउंट था 78,560 और उसका अमाउंट था 56,533, इसका था 44,227। टोटल कितना आ रहा था इनका 1,79,320, 1,79,320 चेक कर लेते हैं। ये देखो 1,79,320, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट नरेशन being loss on realization is या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं being account of partners is finally settled, ऐसा भी लिख सकते हैं। So students, I have done this sum. I hope in this sum you have understood लेजर अकाउंट्स, लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, और आपने ये भी समझा लेजर से जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, वो भी आपने समझा। So I hope you must have understood this video. Thank you very much.